Okay, so after we do the packing efficiency, we have to do some questions जहाँ पे density और edge length का relation आएगा. Density of the solid basically. So density and edge length का relation, and वो बहुत एक simple formula से दिया जाता है. Formula कुछ इस तरीके से है कि density of the solid is nothing but Z, which is the number of atoms in a unit cell, into atomic mass. अगर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, लेकिन मोस्टली एटम ही देते हैं, इन अपॉन ए क्यूब इनटू अवोगाड्रोस नंबर. अभी देर आर सम कन्वर्जन दैट यू शुड नो. जो डेंसिटी है दैट विल बी गिवन इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. जो एज लेंथ है ए, जो एज लेंथ है ए, वो पिकोमीटर में दिया जाएगा. Density will be given in grams per centimeter cube. Edge length will be given in picometer. Now, this edge length has to be converted into centimeters. So, 1 picometer is equal to 10 raised to minus 10 centimeters, minus 12 meters, and minus 10 centimeters. Now, I don't want you to write down it in terms of 10 raised to minus 10. I want you to write it in terms of 10 raised to minus 8. For example, अगर कोई क्वेश्चन में तुमको 288 पिकोमीटर दिया है, एज लेंथ 288 पिकोमीटर दिया है, देन you don't write it as 288 into 10 raised to minus 10 centimeters. Instead, try to write it like this: 2.88 into 10 raised to minus 8 centimeters. तो a का हम क्यूब निकाल लेंगे. So this is going to be 2.88 का क्यूब and 10 raised to minus 8 का क्यूब लेंगे, तो minus 8 का क्यूब will become minus 24. Now Avogadro number is 10 raised to plus 23. So calculation will become slightly easier. ठीक है, पावर नीचे से चला ही जाएगा. You will be having only one digit numbers नीचे, तो that will be much easier to solve. Always make sure that तुम a क्यूब पहले निकाल रहे हो, a क्यूब तुम पहले सॉल्व कर रहे हो, and then you substitute, वरना you will make mistakes. नाउ a क्यूब एक बार आ गया एज लेंथ, तो इसमें अभी तुम्हारे पास में रेडियस के साथ में रिलेशन होना चाहिए. तो जैसे अगर मेरे पास सिंपल क्यूबिक है, कभी कभी तुमको रेडियस निकालने बोलते हैं एटम का, तो सिंपल क्यूबिक में वी नो, वी हैव जस्ट सीन a इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस आ जाएगा. बॉडी सेंटर्ड में हम लोगों को पता है √3a इज इक्वल टू 4r, तो रेडियस आ जाएगा. फेस सेंटर्ड में एफसीसी में वी नो √2a इज इक्वल टू 4r, तो वापस a और रेडियस ए दिया, ए आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा. आई जस्ट डू अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. जैसे ये क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी क्यूबिक लैटाइस, तो एफसीसी मतलब z is 4. नाउ द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 408.7 picometer. So A over here is 408.7 picometer. I will write this as 4.087 into 10 raised to minus 8 centimeters. Calculate the density of the silver. तो तुमको density निकालना है. Okay. So atomic mass is also given. Atomic mass of silver is given as 108. तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला में डालना है density is equal to Z into atomic mass into a cube upon Avogadro's number. Okay, so as I told you कि you find out a cube पहले, तो a cube को log से solve करेंगे. a cube will be nothing but 4.087 in का cube and 10 raised to minus 8 का cube. So you solve this. This will be anti-log 3 times of log 4.087 into 10 raised to minus 24. So a cube is going to be whatever the answer you will get over here. लॉग का वैल्यू निकालना है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका एंटी लॉग निकालना है. वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर.
As I have solved this question for you, log 4.087 is 0.6114. log से देख के करना है, उसको into 3 किया 1.834 आया, उसका एंटी लॉग निकाल के we get 68.233 into 10 raised to minus 24. Now I have written it in the power of minus 23 क्योंकि Avogadro number is plus 23. So ये बन जाएगा 6.823 into 10 raised to minus 23. I substitute there, minus 23 plus 23 gets cancelled. You solve this and you get the answer 10.51. So this is how you're supposed to do density का question. Okay, now in ionic solids basically हम लोगों को थोड़ा सा अरेंजमेंट देखना है कि आयनिक सॉलिड्स में कटायन कहाँ प्लेस्ड होते हैं, अनायन कहाँ प्लेस्ड होते हैं. मोस्टली जो भी लैटाइस हमने पढ़ा है, दैट इज देयर आर 8 एटम्स इन द कॉर्नर सिंपल क्यूबिक में, ईच कंट्रीब्यूटिंग 1/8. बॉडी सेंटर्ड में एक एटम सेंटर में भी था, फेस सेंटर्ड में एक एटम क्या बोलते हैं, फेस 6 एटम फेसेस पे भी थे. अभी ये जो भी एटम्स है वो जनरली आयोनिक सॉलिड्स में अनायंस होते हैं और कटायंस एक्चुअली इनके वॉइड्स में फिट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख लो, तो ये FCC लैटाइस है और ये NaCl का स्ट्रक्चर है. NaCl इज इन FCC लैटाइस. तो यू कैन सी कि जो भी लैटाइस के पॉइंट्स है FCC के, वो सब ब्लू वाले डॉट ने यानी क्लोराइड ने बनाया है. एक्चुअली ये बड़े बड़े एटम्स है, मतलब टच कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया है ताकि वो थोड़ा क्लियरली समझे. तो इफ यू विल लुक एट इट केयरफुली, तो देर आर 8 कॉर्नर्स, each contributing 1/8 to the unit cell. Okay, and then there are 6 faces. ये फेस 1 है, ये फेस 2, ये नीचे वाला फेस 3, ये पीछे वाला फेस 4, ये साइड में फेस 5 और ये फेस 6. तो देर आर 6 एटम्स इन द फेसेस. तो ये सब क्लोराइड एटम है. अब तुमको बीच में उसमें सोडियम दिख रहे हैं, ये वॉइड्स में बैठे हुए. वॉइड्स मतलब क्या हो गया, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में ये एक क्लोराइड आयन है, ये दूसरा क्लोराइड आयन है और ये तीसरा क्लोराइड आयन है. तो जब 3 क्लोराइड आयन एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक बीच में एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है. उस वेकेंट स्पेस में कटायन जाके बैठेगा. अब ये वेकेंट स्पेस, इस वॉइड को हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे. ट्रायंगुलर वॉइड क्योंकि दिस वॉइड इज मेड बिकॉज ऑफ 3 एटम्स. अब अगर मैं एक एटम इसके ऊपर रख दूं, 3 डायमेंशनली एक एटम उसके ऊपर रख दूं, फिर भी वॉइड रहेगा और इस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे. अगर मैं 3 एटम को नीचे रखूं और 3 एटम को अगर मैं ऊपर रखूं, तो उसके बीच का जो स्पेस होगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे. मैं वॉइड्स एक बार डायग्राम से वापस से दिखाऊंगा, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि एक यूनिट सेल में बहुत अलग अलग टाइप के वॉइड्स बन सकते हैं. एक ही यूनिट सेल में ट्रायंगुलर वॉइड भी होगा, एक ही यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड भी होगा, एक ही यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा, क्योंकि एटम की कमी थोड़ी ना. 3 एटम साथ में आ गए, 3 एटम साथ में आ गए, उन लोग ने ट्रायंगुलर वॉइड बना दिया. 4 एटम साथ में आ गए, उन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया. 3 एटम इस तरफ से, 3 एटम इस तरफ से मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना दिया. ठीक है. उसी तरीके से अगर तुम्हारे पास में 4 एटम ऊपर की तरफ है और 4 एटम नीचे की तरफ है, तो जो वॉइड बनेगा वो क्यूबिक वॉइड बनेगा. तो ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप के वॉइड्स होते हैं. ठीक है. आई विल शो यू द वॉइड्स वंस. As you can see by this figure, you have a, अगर यहाँ पे 3 एटम अगर मैं कंसिडर करूं, तो ये 3 एटम के बीच का जो वॉइड होगा वो ट्रायंगुलर वॉइड होगा. बराबर. अब यहाँ पे मैंने चौथा एटम इसके ऊपर प्लेस किया है, तो अब जो वॉइड होएगा ये चारों के बाद में, उस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे. तो ट्रायंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा क्योंकि 3 एटम उसको सराउंड करेंगे. टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा क्योंकि 4 वॉइड उसको सराउंड करेंगे. अब अगर कटायन बहुत ही छोटा है तो वो ट्रायंगुलर वॉइड में बैठेगा. अभी ये अलग अलग वॉइड क्यों है, क्योंकि वॉइड्स तुम्हारे पास एक यूनिट सेल में सारे हैं, ट्रायंगुलर भी है, क्यूबिक भी है, ऑक्टाहेड्रल भी है, टेट्राहेड्रल भी है. अभी कटायन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है. अगर कटायन बहुत ही छोटा है तो इट विल प्रेफर टू गो इन अ ट्रायंगुलर वॉइड.
अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो इट विल गो टू टेट्राहेड्रल वॉइड, और बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और अगर काफी बड़ा है तो इन वॉइड्स में वो बैठेगा नहीं, वो क्यूबिक वॉइड में आके बैठेगा। तो जैसे ये ऑक्टाहेड्रल का एक एग्जांपल दिया है, ऑक्टाहेड्रल में तुम्हारे पास 3 एटम नीचे की तरफ है, तुम्हारे पास 3 एटम ऊपर की तरफ है। वो दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो बीच का एक वेकेंट स्पेस बचेगा, उस वेकेंट स्पेस को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। नाउ अगेन आई विल रिपीट इट कि एक यूनिट सेल में सारे टाइप के वॉइड्स होंगे, ट्रायंगुलर भी, टेट्राहेड्रल भी, ऑक्टाहेड्रल भी, ठीक है। लेकिन वो कटायन कौन से वॉइड में बैठेगा वो कटायन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को पता चले कि एक कटायन कौन से वॉइड में जाके फिट होने वाला है, उसके लिए हमारे पास में एक रेशियो है विच इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। दिस इज रेडियस रेशियो का टेबल विच यू नीड टू रिमेंबर ऑल्सो। नाउ व्हाट इज दिस रेडियस रेशियो? हमारे पास में कटायंस और अनायंस का रेडियस का फॉर्मूला तो होता ही है, जैसे Na+ का हमारे पास रेडियस का वैल्यू होगा और हमारे पास Cl- का रेडियस का वैल्यू होगा। जनरली अनायंस आर बिगर इन साइज, कटायंस आर स्मॉलर इन साइज, जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली। तो जो हमारा ये वैल्यू आता है वो 1 से कम आएगा। और जब भी ये हम लोगों का यहाँ पे तुम्हारा जो कटायन है वो कितना छोटा है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड कि वो कौन से वॉइड में बैठेगा। इफ द रेडियस रेशियो कम्स बिलो 0.225, अगर 0.225 से कम है तो कटायन बहुत ही छोटा है और वो ट्रायंगुलर वॉइड में जाके बैठना प्रेफर करेगा, जैसे इन द केस ऑफ B2O3। नाउ दिस इज एंटायरली फैक्चुअल। ओके, अगर रेशियो 2 to 5 से 414 के बीच में, तो इट विल गो एंड फिट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसे जिंक सल्फाइड के केस में या सिलिका के केस में। अगर वॉइड 414 और 732 के बीच में है तो इट विल प्रेफर टू सिट इन एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लाइक इन द केस ऑफ MgO2 एंड NaCl, व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। एंड अगर 732 से ज्यादा है रेडियस रेशियो तो वो क्यूबिक वॉइड में बैठेगा, जैसे इन द केस ऑफ CFCl। नाउ इट इज कंप्लीटली फैक्चुअल, बट ZnS, NaCl और CFCl का हम लोग पूरी तरीके से स्ट्रक्चर देखेंगे भी, ठीक है। वी हैव टू सी इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बताया भी है, तो यहाँ पे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सिर्फ इस टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है तुमको कि क्या बोलते हैं, तुमको रेडियस रेशियो दिया जाएगा कटायन और अनायन का, तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा एंड ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कटायंस कितने, कटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब कितने उसको सराउंड कर रहे हुए हैं। तो अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा है तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 3 नीचे 3 ऊपर सराउंड करेंगे अनायंस। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है मतलब वो प्लेनार ट्रायंगुलर प्लेनार वॉइड में बैठा है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है मतलब वो क्यूबिक वॉइड में बैठा है। We will see some of the examples of this, but before that एक factual data है जो हम लोगों को याद रखना है। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि कोई भी यूनिट सेल में चारों टाइप के वॉइड्स होते हैं, तो दो मेजरली जो हम लोगों के पोर्शन में है वो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो जो तुमको याद रखना है वो ये कि इफ अ यूनिट सेल हैज n atoms, अभी सिंपल क्यूबिक में एक होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में 4, लेकिन ये सम्स करने के लिए हमको वो भी अगर नहीं पता होगा तो भी चलेगा, हम n लेके करेंगे। इफ अ यूनिट सेल हैज n एटम्स देन उसमें टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स will be 2n and octahedral voids will be n। टेट्राहेड्रल वॉइड 3 एटम नीचे 1 एटम ऊपर, उस तरीके के डबल होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल n होंगे, ठीक है, अगर यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स है तो। अभी इसके ऊपर सम्स कैसे दिया जाएगा? जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया है कि एन आयनिक सॉलिड, आई राइट डाउन द क्वेश्चन। So here we go. This is the entire question. You have an ionic solid AXBY.
anion B makes the FCC lattice and cation A is present in all the octahedral voids. So you have to predict the formula and the coordination number of A and B. Okay. So यहाँ पे सबसे पहले ये सारे सम एक ही टाइप में करना है. तो हाउ आर यू सपोज टू डू इट? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. अच्छा, अभी वी नो इट्स एफसीसी, तो वी नो इट्स 4, बट जनरली हम लोग एन ही लेके चलेंगे. अभी देखो वॉइड कौन सा दिया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. नाउ यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि सारा वॉइड फिल हो. ठीक है, हो सकता है कि उसका सिर्फ 1/3 फिल हो या हाफ फिल हो या सिर्फ 2/3 फिल हो, कुछ भी हो सकता है. बट यहाँ पे वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिया है, तो जितने एटम है उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं. बट ऑक्टाहेड्रल दिया है तो हम लोग एन लिखेंगे. अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कटायन बैठा है एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो अब कटायंस कितना आएगा, नंबर ऑफ कटायंस विल आल्सो बी 1n. तो अभी हमारा फॉर्मूला A:B का cation is n and anion is also n, so that goes to 1:1. So therefore हमारा जो फॉर्मूला है वो हो गया AB, मतलब तुम्हारा x और y का वैल्यू AB था. अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, ये बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ एंट्रेंसेस में आएगा. अब AB कैसे निकालना है, यू नीड टू रिमेंबर कि फॉर अ कंपाउंड, फॉर एन आयनिक सॉलिड AXBY, coordination number of A upon coordination number of B will be in the ratio y:x. वो y:x के रेशियो में होगा. So अब in for this formula, coordination number of A upon coordination number of B will be in the ratio 1:1. So therefore I can just say कि as coordination number of A is 6, क्योंकि इट्स प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो उसको 6 सराउंड किए हुए एटम्स. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी इज आल्सो 6. ये बेसिकली NaCl का स्ट्रक्चर है. ये NaCl में याद भी रखना है तुम लोगों को कि NaCl में इट्स द FCC लैटाइस, जहां पे क्लोराइड मेक्स द लैटाइस एंड Na+ इज प्रेजेंट इन द वॉइड. कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा Na और Cl का, which is 6 and 6. Coming to the second question, an ionic solid AXBY same दिया है, anion B makes the FCC lattice. तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे. सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो उसे हम लोग n कंसिडर करेंगे. इवन दो वी नो इट्स एन FCC lattice, बट हम उसे n कंसिडर करेंगे. अच्छा, अभी कौन सा वॉइड दिया है, इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिया है, तो you have tetrahedral void will be as 2n and it is number of cations. ये number of anions था, क्योंकि atom was anions was making the FCC lattice, and number of cations is nothing but half of the tetrahedral voids. So tetrahedral void is 2n, half of it will be n. So ratio of A:B will be again n:n, that will be 1:1. So therefore you have the formula again AB. Now coordination number will change. Coordination number of A and coordination number of B again will be in the ratio 1:1. Now coordination number of A over here is 4 because it is present in the tetrahedral void. So therefore coordination number of B is again 4. We'll come to the next one. An ionic solid AXBY, anion B makes the BCC lattice where cation A occupies the body centered position. See now, see carefully. यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कोई कि जो कटायन है वो कोई वॉइड में बैठा है. वो बोला है कि जो तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड BCC स्ट्रक्चर होता है, BCC में, you have seen BCC, हाँ, BCC में ये कोने का जो पोजीशन है, that कोने का पोजीशन is occupied by the anions. And cation is occupying this body centered position, अंदर वाला body centered position. Okay, so now let us solve this question. So basically what we know is
कि जो तुम्हारा नंबर, इसको अलग तरह से करना है। कैसे करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ एनायंस कितना आएगा? इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन, सॉरी। नंबर ऑफ एनायंस कितना आएगा? वो तुम्हारा बीसीसी लैटाइस बना रहा है, मतलब वो जो कोने के एटम्स है वो बना रहा है। तो नंबर ऑफ एनायंस विल बी 1/8 into 8, क्योंकि देयर आर 8 एटम्स इन द कॉर्नर्स, ईच कंट्रीब्यूटिंग 1/8। सो यहाँ पे एक एटम आ गया। एंड number of cations will be 1, क्योंकि there is one atom in the body centered position। तो कैटायन और एनायन वापस यहाँ पे एक और एक ही आ गए हैं। ठीक है, तो कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 ही आएगा। देयरफॉर फॉर्मूला तुम्हारा ए बी ही आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए देखूं अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, again the ratio is 1:1 only, but your coordination number of A, which is a cation, is 8, क्योंकि as it is present in the center, body centered position, यहाँ पे बीच में है, तो it is touched by 8 atoms, 7 and 8. It is touched by 8 atoms. So coordination number of A is 8. Therefore, coordination number of B is also 8. Now, this is an example of CFCl. ये भी याद रखना है CFCl का। सी फॉर्मूला तीनों का भी A/B आया, बट व्हाट इज चेंज इज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे 1:8 आया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 आया है। एंड दिस एग्जाम्पल जहाँ पे इट्स प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज ZnS। So I hope this type of questions is simple. We'll do one more structure, the fluoride structure. This is called as a fluoride structure. Let's see the question. An ionic solid AXBY, cation A makes the FCC lattice and anion B is present in all the tetrahedral void. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रिवर्स हो गया है। यहाँ पे cation is making the lattice and anion is present in the void. This is different. ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बेसिकली तुम्हारा CaF2 या ये जो कंपाउंड होता है ना AB2 टाइप्स, उसके लिए आता है CF2UO2। तो इनका सॉलिड स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे तुम्हारा जो अनायन है वो वॉइड में प्रेजेंट है और कटायन तुम्हारा लैटाइस बना रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनायंस नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस आएगा। तो क्योंकि कैटायन इज मेकिंग द लैटाइस, तो नंबर ऑफ कैटायन लिख देता हूँ। कैटायन इज A, उसको N लिख देते हैं। अब it is present in some tetrahedral void, so I will write here tetrahedral void. We know tetrahedral void is double of the number of atoms present, so it's 2n. Now it is present in all the tetrahedral voids, so number of anions, which is B, is also 2n. Number of anions B, which is also 2n. So therefore cation to anion ka ratio, cation is N, anion is 2n, so it is 1:2. Therefore the formula is AB2, fluoride structure. Now what is interesting over here is a coordination number, क्योंकि अब तक जो भी 3 एग्जाम्पल मैंने दिए सबका 1:1 ही आ रहा था, बट यहाँ पे उल्टा आया था। मैंने क्या फॉर्मूला दिया था? फॉर AXBY, coordination number of A upon coordination number of B will be in the ratio y:x. Will be in the ratio y:x. So therefore यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला AB2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B will be in the ratio 2:1. So therefore कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B, क्योंकि वो वॉइड में प्रेजेंट था, B is present in the tetrahedral void, so उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि वो वॉइड में प्रेजेंट था टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ध्यान से करना है ये वाले स्ट्रक्चर को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वरना उल्टा कर लोगे। तो B 4 हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A will be 4 equal to 2/1. Therefore coordination number of E is going to be 8. Okay, in
इन सॉलिड स्टेट, जैसे मैंने तुमको जो डेंसिटी का सम बताया था कुछ टाइम पहले, कि डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब इंटू अवोगाड्रोस नंबर। अब ये ए क्यूब में हमने ए और आर का रिलेशन देखा था। सिंपल क्यूबिक के लिए ए वॉज इक्वल टू 2r, बॉडी सेंटर्ड के लिए √3a इज इक्वल टू 4r, और फेस सेंटर्ड के लिए √2a इज इक्वल टू 4r। अभी इसमें एक और ट्विस्ट कर सकते हैं एग्जाम में, कि तुमको कटायन और अनायन, मतलब तुमको रादर देन गिविंग अ सिंगल मेटल तुमको एक आयोनिक सॉलिड दे सकते हैं। तो वो टाइम पे ये थोड़ा चेंज हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाता है, टेल यू। अगर फेस सेंटर्ड है, मैं फेस सेंटर्ड का फेस सेंटर्ड में मतलब तुम्हारे पास में ये एक फेस है, यहाँ पे ही एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, और बीच में एक पूरा एटम उसके फेस पे है। तो हमने लिखा था कि ये है लाइन, अगर मैं इसको ए बी सी बोलूं, तो वी हैव रिटन कि ए सी वॉज इक्वल टू √2a एंड ए सी वॉज इक्वल टू 4r। लेकिन अगर ये आयोनिक सॉलिड है, तो जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, जो रेड वाला आयोनिक सॉलिड है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि ये फेसेस में तुम्हारा अनायन आ गया है या कटायन आ गया है, और कॉर्नर्स में तुम्हारा अनायन है। तो अगर ये तुम्हारा कटायन है और ग्रीन वाला पार्ट तुम्हारा अनायन है, तो यू हैव टू जस्ट बी श्योर, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि अगर इस तरीके का कुछ आ गया, तो यहाँ पे ये जो 4r होगा, ये रेडियस और ये 2r, तो यहाँ पे दिस 2r इज नथिंग बट 2 रेडियस ऑफ कटायन, and this is radius of anion, and this is radius of anion, plus radius of anion will become equal to the length was √2a। तो just rather than writing 4r, क्योंकि अब वो r सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम एटम होता तो r सेम होता, लेकिन अभी क्यू के बीच में एक कटायन आया है और एक अनायन है हमारे पास में। कैसा अनायन है, आधा अनायन का रेडियस, आधा अनायन इधर आधा इधर, तो उसके वजह से वो 2 टाइम्स कटायन प्लस अनायन हो गया है। तो ये फॉर्मूला में चेंजेस हो जाता है, तो इसका ख्याल रखना है।